جو مرشدآباد میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی جس کا نام تھا بابری مسجد، ودھایک جی سے کہوں گا کہ اگر آپ نیت میں مخلص ہیں اور واقعی مسجد عبادت کے لیے بنا رہے ہیں، آپ کی سیاسی نیت نہیں ہے، تو دنیا میں سب سے بڑی مہان ہستی ہے محمد رسول اللہ۔ میں ودھایک جی سے، ایم ایل اے صاحب سے کہوں گا کہ اس مسجد کا نام بابر کے نام پر نہ رکھ کے محمد الرسول اللہ کے نام پر رکھو، انشاءاللہ وہ مسجد تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ سرکار عالم اس مجلس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہاں کے تمام مسلمان مؤمنین مؤمنات مرحومین مرحومات کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کی اصلاح اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کا کہا نہ مانو، انہو لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، چاہے وہ چھوٹا شیطان ہو یا بڑا شیطان، اللہ فرماتا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ نے واضح لفظوں میں یہاں پر ارشاد فرما دیا، اے ایمان والو حقیقی مسلمان بنو، اسلام جیسا چاہتا ہے ویسے مسلمان بنو، جمعہ 8 دن والے نہیں بلکہ 5 وقت نماز کے عادی مسلمان بنو۔ حضرات، اے میرے بابو جو گیٹ پر کھڑے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، دیکھو ماں بہنیں بھی آ رہی ہیں، آپ لوگ وہاں سے ہٹ جاؤ، آپ لوگ آ جاؤ، اندر آ جاؤ، گیٹ پر نہ کھڑے ہوں، اور جو ذمہ داری سنبھالنے 1-2 لوگ ٹھیک ہے وہ کنارے کھڑے ہو جائیں، ہماری ماں بہنیں بھی آ رہی ہیں۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے درمیان پردہ رکھا ہے، اگر جلسے میں ہی اس کو فالو نہیں کیا جائے گا تو پھر جلسہ کرانے سے فائدہ کیا ہے؟ ہاں، اور ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ذرا ہو سکے کیا چہرے کو ڈھک کر کے بیٹھیں، اسلام تمہیں تہذیب سکھاتا ہے، حیا سکھاتا ہے، پردہ سکھاتا ہے، پردے میں تمہاری عزتیں محفوظ ہیں۔ حضرات غور فرمائیں، توجہ چاہوں گا، اللہ نے اس آیت میں پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس کے بعد فرمایا اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ جب اللہ نے ایمان والا فرمایا تو ایمان والا تو وہی ہوتا ہی ہے کہ جس نے اللہ کی توحید کی اور حضور کی رسالت کی دل اور زبان سے گواہی دی ہو، اسے ایمان والا کہتے ہیں، وہ مومن ہے۔ توجہ کیجئے، تو اللہ نے پہلے ہمیں ایمان والا فرمایا اور اس کے بعد فرمایا پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا گلاس پھینو، دیکھیے، بس یہ میرے ہاتھ میں گلاس ہے، ارے بھائی بیٹھو، کہاں چلے مسٹر، جاؤ یار، اتنی دور سے بلا کر کے چل دیے، بیٹھو سب لوگ بیٹھو، کبھی کبھی بیٹھا کرو، عادت ہے، ذرا سی تکلیف ہوئی تو اٹھ کر کے چل دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی جلسے ہوتے ہیں، محنت ہوتی ہے، ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں، تھوڑا سا تکلیف برداشت کرو، بیٹھو بابو بیٹھو، نوجوان ہو ماشاءاللہ۔ ہاں، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں گلاس ہے، میں نے یہ اپنی انگوٹھی اس گلاس میں داخل کر دی، یہ انگوٹھی گلاس میں داخل ہو گئی، لیکن یہ انٹری اتنی ایزی ہے، یہ دخول اتنا آسان ہے کہ میں جب چاہوں ہاتھ ڈالوں نکال کر کے باہر کر دوں، حالانکہ یہ داخل ہو گئی تھی، ہے نا؟ اب ذرا بوتل دیجئے، پانی والی، اب یہ میرے ہاتھ میں پانی ہے،
इस पानी की बोतल में आप कलर मिला दीजिए, रंग मिला दीजिए, रंग दाखिल कर दीजिए, फिर उस रंग को जुदा करने की कोशिश करिए, तो वल्लाह सुम्मा वल्लाह, न रंग पानी से जुदा हो, न पानी रंग से जुदा हो। बस यही मेरा अल्लाह आपसे चाहता है कि ए ईमान वालों, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिन अल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है। तो ये दोस्तों, दुनियावी रंग में रंगने के बजाय इस्लामी रंग में रंग जाओ, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, मोहम्मदी रंग में रंग जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। हकीकी मुसलमान बनो, नाम निहाद मुसलमान नहीं। हजरात मेरी तरफ देखेंगे आप, इसी मजमे में, माफ करिएगा तल्ख मिजाजी के लिए, इसी मजमे में ऐसे कितने लोग बैठे होंगे कि जिन्होंने फजर की नमाज ईद के दिन पढ़ी होगी, ईद के दिन उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी होगी। इसी मजमे में कितने लोग होंगे, दर्जनों लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें जोहर की नमाज पढ़े महीना गुजर गया होगा, बस वो सिर्फ जुमे के दिन जाते हैं, बाकी जोहर में किसी दिन नहीं जाते। तो हमारा हाल यह है कि 80 से 90% मुसलमान वो हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं। आगे चलें। इस्लाम ने जिस निकाह को निहायत आसान बनाया था, हमने अपनी बुरी रस्मों के जरिए से उस निकाह को अपनी कौम के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मसला बना दिया है। हजरात, आज हमारा मिशन ये है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, हलाल है कि हराम, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। बोलो ऐसे ही है नहीं? कितने लोग वो हैं जो सूद खोर हो चुके हैं, कितने लोग वो हैं कि नौजवानों का हमारा एक बड़ा हिस्सा तबका वो है जो माज़अल्लाह नशा, शराब, जुए का और बियर का आदी हो चुका है। अल्लाह करम फरमाए। ये है हमारे हालात। और वो कौम, जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अब जरा आगे बढ़िए। हजरात, जब हम अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं तो हम अपने 10 साल के बच्चे को देखते हैं। जब हमारे बच्चे 10-12 साल के हो जाते हैं तो उनके माँ बाप 50 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है। जिन बच्चों के हाथ कलम और किताब से सजे होने चाहिए थे, हमने अपनी उस नई नस्ल को हेयर स्टाइल में फंसा दिया। कितने बच्चे हमारे वो हैं, ए चुपो यार भाई, अल्लाह के बंदे रहम करो कम से कम। भाई आप लोग ये समझते हो तकरीर करना शब बरात का हलवा के फातिहा दिला के खा लो? हजरात थोड़ा सा खामोशी इख्तियार फरमाएं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। हमारा बच्चा जब 13-14 साल का हुआ तो कितने बच्चों को देखा गया है कि वो कानों को छिदवा के बाली पहने घूमते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। अरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, तुम मर्द बन के रहो। ये औरतें वाली आदतें कहां से आ गई है? अल्लाह के नबी ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों के स्टाइल को अपनाया करती हैं। हजरात, उसके बाद जब हमारा बच्चा 15-16 साल का हो जाता है, बाप बेचारा सऊदिया में कमा रहा है, बाप बेचारा दिल्ली में कमा रहा है, बाप बेचारा कोलकाता में कमा रहा है, कई महीने से घर नहीं आया, कभी कभी नाश्ता भी नहीं करता, ताकि चंद पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को भेज सकूं और मेरे बच्चे खुशहाल जिंदगी जी सकें। इधर ये हमारा नौजवान 1 लाख रुपए का मोबाइल लेकर के घूम रहा है। जब तक इसकी 2 GB डाटा खत्म नहीं हो जाती, इसे चैन की सांस आने वाली नहीं है। जाओ मुसलमानों की बस्तियों में जाकर के देखो, मुसलमानों के 5-5 बच्चे, 10-10 बच्चे इकट्ठा होकर के नालियों पर बैठ करके घंटों मोबाइलों में बर्बाद किया करते हैं। हजरात आगे बढ़ें।
जब हमारा बच्चा 18-19 साल का हुआ तो अब ये बालिग हो गया है, तो 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है। अब ये 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, गले में जंजीर पहने हुए हैं, 2 गुटका जेब में रखा हुआ है और 2 गुटका मुंह में रखा हुआ है और फटी हुई पैंट पहने हुए हैं और नारा लगाएंगे, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ओ मेरे भाई, आप नबी पर कुर्बान कहाँ हो? आप तो मुंबई के फिल्मी फहस्टार पर कुर्बान हो। उसने गले में चैन पहन ली है तो आपने भी पहन ली है, उसने फटी पैंट पहन ली है तो आपने भी फटी पैंट पहन ली है। याद रहे, फटे हुए कपड़े पहनना ये नहुसत की अलामत है और फटे कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें यह फैसला करना होगा कि नहुसत के रास्ते पर चलना है या सुन्नतों वाले रास्ते पर चलना है। हजरात, हम कभी कभी अपने बच्चों को देखते हैं, माफ करिएगा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मगर जो जमीनी सच्चाई है उसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभी चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तस्वीर का एक रुख आपने समाप्त कर लिया, अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख समाप्त कीजिए। कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में, कभी गुजरात में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं, कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, शिरकिया नारा लगवाते हैं, कभी यहाँ कभी वहां हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो जाती है। अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये कह वो कह रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। ए मेरे कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए, अल्लाह ना करे। ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। और मैं जिला मालदा के इस शहर से, जिला मालदा से एक बात पूरे बंगाल के मुसलमानों के लिए कहना चाहूंगा। ये जो मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद तामीर हो रही थी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद, मैं विधायक जी से कहूंगा कि अगर आप नियत में मुखलिस हैं और वाकई मस्जिद इबादत के लिए बना रहे हैं, आपकी सियासी नियत नहीं है, तो दुनिया में सबसे बड़ी महान हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं विधायक जी से, एमएलए साहब से कहूंगा कि उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर ना रख के मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर रखो। इंशाअल्लाह वो मस्जिद तुम्हारे लिए दुनिया में भी कामयाबी का जरिया बनेगी, आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बनेगी। जरा नारा लगाइए कोई सा बीच मजमे से। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये मुल्क हर कौम का है, हर कास्ट का है, हर धर्म वालों का है, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी तरह की इबादत से कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए मस्जिदें, मदरसे ये गैर सियासी होना चाहिए और उसमें इबादत होनी चाहिए। हजरात, इतनी बातें कहने के बाद अब आइए बड़े खुलूस के साथ आपसे एक बात और अर्ज करूंगा। ईमान किसको कहते हैं?